Hello students, how are you all? Hope all of you are fine and staying at home and be healthy and safe. Now during this situation of pandemic, the situation outside is not good. So try to keep yourself at home and cultivate new hobbies in yourself. तो इस छुट्टियों के बीच में आपने कौन कौन सी नई हॉबीज़ इनकलकेट की है आपके अपने अंदर? So many things you might have started. Some might have started dancing at your home. Some might have started doing painting, craft work, and others might have started the doing reading books. सबने ऐसा ऐसा कुछ स्टार्ट कर दिया है ना? Because enough time you have got. Now I want to ask कि डू यू रीड बुक्स? आप घर पे बुक्स रीड करते हो? एंड व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड? कैसी बुक्स रीड करते हो? यस, तो ऑल ऑफ यू विल से मोस्टली द स्टोरी बुक्स. तो लेट्स सी इफ द चॉइस इज गिवन टू यू. अगर आपको चॉइस दी गई तो आप कैसी बुक्स रीड करोगे? प्ले वाली, रीड द बुक्स और वॉच टेलीविज़न. तो नेचुरली नाउअडेज यू विल से कि प्ले इज़ मोर एन्जॉयेबल. हम ज़्यादा प्ले करना पसंद करते हैं. देन द सेकेंड नंबर विल कम वॉचिंग द टेलीविज़न. और अब तो एक न्यू और ऐड हो गया है प्लेइंग द गेम्स इन द मोबाइल. बट डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. इसलिए आप गेम में मोबाइल खेलने से जितना दूर रहें दैट विल बी आपके लिए ही अच्छा होगा. इट बैडली अफेक्ट्स योर आइज़, योर ईयर्स एंड सो ऑन. सो उससे अच्छा है कि आप बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलिए सो दैट फ्रेश एयर you can get, physical energy will come in yourself, it will strengthen your bones. So please try to go outside and play. And when you are at indoors, बाहर भी हम बहुत ज़्यादा जा नहीं सकते because situation is like that. So please make a collection of books and try to read the books. So today the lesson which we are going to do is from your English Junction book of Standard 4th. आज हम English Junction Standard 4th में से जो पोएम करने वाले हैं that is about the bookshop. तो bookshop is a place where you can get different variety of books. So let's start by reading the poem. Then we will understand it in detail. Now here is poem. So much to choose from, so many books. Let's take our time and sit and look. Books about princes and witches and fairies. Books about monster and other hairy scaries. तो क्या है? So much to choose from, so many books. Let's take our time and sit and look. Books about princes and witches and fairies. Books about monsters and other hairy scaries. Pop-up books to make you laugh. Waterproof books to take in bath. Books about making things and things to do. Books about visits to the farm and the zoo. Or next books, what are they? Books about animals and insects and birds. Books full of pictures. Books of words. So much to choose from. Let's take our time. How about this? A book full of rhymes. So here the poem is, which other books are there? Pop-up books to make you laugh.
waterproof books to take in bath, books about making things and things to do, books about visits to the farm and the zoo, books about animals and insects and birds, books full of pictures, books full of words. So much to choose from. Let's take our time. How about this one? A book full of rhymes. And who is the writer of the poem? Jenny Elizabeth Clark. She has written this beautiful poem on the bookshop, in which she is telling about the variety of books which are available in the bookshop. Let's try to understand the poem. Now first we will take a quick look about this poet Jenny Elizabeth Clark. Now Jenny Elizabeth Clark is an English writer of children's stories and books. उन्होंने बच्चों की बहुत सारी स्टोरीज और पोएम्स लिखी है. Apart from writing children, Jenny had also spent a great deal of time inspiring children to read and write. तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों को बुक्स रीड करने के लिए और लिखने के लिए भी प्रेरणा दी है. उन्होंने जो बहुत सारी बुक्स और पोएम बच्चों के ऊपर लिखी है, उसमें से उनकी जो बेस्ट फेमस है वो है गिलबर्ट द ग्रेट एंड स्टक इन द मड. These are the two books which she has written and which is very famous. So you also try to get the time and try to read this book. It will be easily available because now at the tip of our finger all the things are available. You search in the Google, directly it will come. So please try to read this book which is written by Jenny Elizabeth Clark. Now let's see what she wants to tell in the poem. Now the poet, she has gone to the bookshop. Now bookshop is a place where variety of books are available. अब जितनी चाहो उतनी बुक्स आपको मिल सकती है. See this full store, it is covered with all the varieties of books. तो जब when the poet went in the bookshop, so she is excited and fascinated by the variety of books. यहाँ पे इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है तो वो एकदम एक्साइट हो जाती है कि दिस मच बुक्स आर अवेलेबल. तो she wants to invite all the students to come in this bookshop and take your own time. कि आप यहाँ बैठो, take the book and try to read all the varieties of books which are in the available in the bookshop. And she writes a poem. वो बच्चों को बताना चाहती है कि बुक्स कितनी अच्छी होती है, how many different kind of information we can get, और कितने टाइप्स की बुक है. So that she wants to tell to the children. The poet is also amazed at the number of books in various shapes and size. कि इतनी सारी, कोई बुक्स बड़ी है, कोई छोटी है. So all different colorful, different shapes, different size of books are available in the bookshop. So she wants to tell the little tots. छोटे बच्चों को उसकी तरफ आकर्षित करना चाहती है. That's why she is giving all the information about the books. So what she is telling? So much books to choose from. So many books. Let's take our time and sit and look. तो क्या कह रही हैं पोएट जेनी एलिजाबेथ क्लर्क कि see these many varieties of books are available in the bookshop. आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बैठ के उसमें से जो अच्छी और यूज़फुल बुक्स है दैट यू हैव टू चूज़, अपने लिए पसंद करनी है, उसके लिए टाइम निकालना है. आज के समय में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टाइम. सबके पास पैसे हैं, सब कुछ है, मगर क्या नहीं है, टाइम. सो दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग. तो यू हैव टू टेक आउट द
टाइम और बैठ के ये बुक्स की तरफ देखना है और जानने की कोशिश करनी है कि व्हाट डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आर गिवन इन द बुक. Then she is telling, see, so much to choose from, so many books. Let's take our time and sit and look. तो आके यहाँ पे बैठ के हम देखते हैं कि what types of books are there. Books about princes and witches and fairies. Books about monsters and other hairy creatures. तो कौन सी बुक्स है यहाँ पे? सी. तो these many types of varieties of books are available. तो books are about what? Princess, राजकुमारी के बारे में बुक्स है. So many stories are about princess. बच्चों को ये सुनना बहुत पसंद होता है, स्पेशली द गर्ल्स. फिर विचेस, आप बोलते हैं ना डाकण इन गुजराती, तो वो विचेस के बारे में भी बहुत सारी स्टोरीज अवेलेबल है. देन अबाउट द फेरीज, परियों की कहानी किसे सुनना पसंद नहीं है? ऑल, बिग एंड स्मॉल, एवरीवन लाइक्स टू रीड द बुक्स अबाउट फेरीज. परियों की कहानी सभी को सुनना पसंद है. देन अबाउट द मॉन्स्टर, द बुक अबाउट मॉन्स्टर, और अलग टाइप्स के हैरी स्कैरीज के जैसे क्रिएचर्स हमने इस दुनिया में नहीं देखे हैं, वैसे क्रिएचर्स के बारे में भी ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन इन द बुक. तो आपको सिर्फ क्या करना है? कुछ नहीं, बैठ के टाइम निकालना है, बुक शॉप में से चूज़ करना है एंड यू हैव टू रीड द बुक्स. देन इन द नेक्स्ट स्ट्रांजा व्हाट डज द पोएटेस वांट टू से, कि और कौन सी वैरायटी के बुक्स अवेलेबल है? पॉपअप बुक्स टू मेक यू लाफ. तो पॉपअप बुक्स ऐसी बुक्स होती है कि जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हो, और ये स्पेशली किसके लिए होती है? स्मॉल चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि पिक्चर देख के ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं. सो पॉपअप बुक्स जैसे ही आप खोलो तो स्टार्ट विद द पिक्चर्स. So these are specially for the small kids. So pop-up books to make you laugh. तो पिक्चर देख के ही हमको स्टोरी या वो किस बारे में है वो आपको पता चल जाता है, हम गेस कर सकते हैं what is the story about. तो the poetess is saying pop-up books आपको हंसा भी सकती है. Then there are waterproof books to take in bath. तो आप अगर फ्री नहीं हो तो where you are in the bathtub, तो बाथटब में भी ये लेके जा सकते हो, बिकॉज द बुक्स आर वाटरप्रूफ. वो भीगेगी नहीं, बिकॉज उसके जो ऊपर का कवर का मटेरियल होता है वो डैमेज प्रूफ होता है, वो नहीं बिगड़ता है. अंदर के पेजेस बिगड़ सकते हैं, मगर जो आउटर कवरिंग होता है दैट इज़ वाटरप्रूफ. सो वाटरप्रूफ बुक्स आप बाथ में भी ले जा सकते हैं. एंड देयर एंजॉइंग योर बाथ यू कैन रीड द books, these waterproof books. Then what other kinds of books are there? Books about making things. तो कौन सी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है? The books of science is there, about the craft is there. क्राफ्ट की बुक्स है, साइंस की बुक है, कोई प्रूफ की बुक है, तो उससे आप इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं और उसमें से देख देख के नई थिंग्स बना भी सकते हो. थिंग्स टू मेक, तो थिंग्स आप कर भी सकते हो. सो दैट टाइप ऑफ बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द बुक शॉप. बुक्स अबाउट विजिट टू फार्म एंड जू. तो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कहीं घूमने गया है, एनी न्यू एक्सपीरियंस ही हैज़ अचीव्ड, तो दैट ऑल्सो ही हैज़ रिटन इन द बुक्स. तो ऐसी बुक्स भी अवेलेबल है कि आप कहीं घूमने गए हो, न्यू एडवेंचर यू हैव एक्सपीरियंस्ड, तो दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल. एंड जू में तो प्राणी संग्रहालय में तो कितने टाइप्स के वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं. देयर कलर, देयर ब्यूटीफुल अपीयरेंस देख के ही कितना मज़ा आ जाता है. तो उसके बारे में जानकारी देने वाली बुक्स भी अवेलेबल है. सो ऑल द बुक्स आर अवेलेबल इन द बुक शॉप. बस यू हैव टू टेक आउट द टाइम एंड try to get the information from it.
Then other books are also there, that is बुक्स अबाउट एनिमल्स एंड इंसेक्ट एंड बर्ड्स। अब दूसरी बुक्स वो किस बारे में है? अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। तो एनिमल्स इस दुनिया में इतने सारे हैं, इनॉर्मस, जो अभी पहले ज़माने में थे, अब वो डिसअपियर हो गए हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर देयर। देन एंडेंजर्ड एनिमल जो अभी बहुत लेस क्वांटिटी में है, लाइक जायंट पांडा इज़ देयर, देन टाइगर इज़ देयर, वाइट टाइगर इज़ देयर। सो दीज आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स। तो वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, दे आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, स्मॉल इन साइज, बिग इन साइज, सो ऑल टाइप्स ऑफ कलरफुल इंसेक्ट्स आर देयर, बुक्स इज़ देयर अबाउट देम। एंड द बर्ड्स, उनका तो कहना ही क्या, कलरफुल एंड स्वीट सिंगिंग लिटिल बर्ड्स। इतनी वैरायटी होती है बर्ड्स की कि हम ने कभी उसके बारे में जाना ही नहीं है। तो वंस यू गो थ्रू दिस बुक्स तो आपको पता चलेगा कि हाउ कलरफुल द वर्ल्ड इज़। इस दुनिया में कितने टाइप्स की बर्ड्स अवेलेबल है। सो दैट ऑल्सो यू कैन हैव अ लुक इन द बुक्स। और एक बार आपको इंटरेस्ट आ गया बुक्स रीड करने में, देन द वर्ल्ड इज़ लिमिटलेस। आप उसमें अंदर डूबते ही जाओगे, आपको इतना अच्छा लगेगा कि कंटिन्यूसली यू विल गो ऑन रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। और जितनी हम जानकारी प्राप्त करें हमारे लिए, नॉलेज प्राप्त करें हमारे लिए कम है। तो प्लीज़ ट्राई टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स। बुक्स फुल ऑफ पिक्चर्स। तो बुक्स, छोटे बच्चों को कितना मज़ा आता है बुक्स देखने के लिए जिसमें पिक्चर्स होते हैं। सो दैट टाइप्स ऑफ बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन प्लेंटी देयर इन द बुक शॉप। बुक्स फुल ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स से जो बुक भरी होती है वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए होती है, उसे हम कहते हैं वोकैबुलरी। सो दैट बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द बुक शॉप। देन द बुक्स इन विच डिक्शनरीज आर देयर। तो डिक्शनरीज में क्या होता है कि इफ समथिंग इज देयर इन डिक्शनरी, व्हाट इज देयर, के मीनिंग ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स you are not knowing, so that you can get from the dictionary। और दूसरी ऐसी बुक होती है उसे कहते हैं डायरेक्टरी। उसमें एड्रेस और फ़ोन नंबर जो वेल नोन पर्सन होते हैं उनके दी गए होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टरी। तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द बुक शॉप। देन द एटलास इज़ देयर। एटलास किसे कहते हैं? द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स आर अवेलेबल इन द बुक। इंडिया का मैप हो, अमेरिका का मैप हो, पाकिस्तान इज़ देयर, नेपाल इज़ देयर। हमारे ये स्मॉल मोरबी है, उसका शेप कैसा है, वेयर वी आर, हम कहाँ पे रहते हैं, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ गिवन इन द एटलास। एवरीथिंग इज़ देयर इन द बुक शॉप। देन व्हाट्स इज टेलिंग, सो मच टू चूज़ फ्रॉम, कि इतनी वेराइटी है। फैंटेसी बुक्स आर देयर, स्टोरी बुक्स आर देयर, फिक्शन बुक्स आर देयर, science books are there, waterproof books are there. There is no limit of books in the book shop। बस आपको क्या करना है, लेट्स टेक आवर टाइम। सिर्फ आपको टाइम निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। एंड हम एक बुक के बारे में तो भूल गए, हाउ अबाउट दिस वन, अ बुक फुल ऑफ राइम्स। राइमिंग वर्ड्स होते हैं, उसकी बुक कैसे होती, एक बार सुनते ही हमको वो गाने का मन करने लगता है, बिकॉज द रिदम इज़ लाइक दैट, कि एक बार आप सुनो तो कंटिन्यूस आपको वो सुनने का मन करता है। तो पोएट कहते हैं, द पोएट क्लेम्स दैट एवरी बुक इन द बुक शॉप इज़ इंटरेस्टिंग, इवन द राइम बुक। कि सारी बुक्स जो बुक शॉप में अवेलेबल है, ऑल द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, सब मज़ेदार है। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि इतनी सारी बुक्स जो अवेलेबल है इन द बुक शॉप, बस यू हैव टू टेक आउट द टाइम एंड ट्राई टू रीड द बुक्स। और अब तो हम इजीली कह सकते हैं कि सो मच टाइम इज़ plenty of time you are having, because there is no school, no tuition, no other activities are there।
तो आप तो अब आराम से ये हैबिट इनकलकेट कर सकते हैं कि आप नई नई बुक लेके आ सकते हैं एंड ट्राई टू रीड ऑल दिस बुक्स। और आप जितना जानोगे तो आपको पता चलेगा दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटलेस। इतनी सारी वैरायटी ऑफ बुक्स आपको मिलेगी बुक शॉप पे, और जितना आप जानोगे उतना इंफॉर्मेशन नॉलेज बढ़ेगा एंड दिस नॉलेज विल बी लिमिटलेस। वो कभी ख़त्म नहीं होता। हम जितना सीखते हैं उतना हमें आता है। सो आप इस पेंडेमिक टाइम का प्लीज़ ट्राई टू इनकलकेट दिस हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स। और मैं आशा करती हूँ कि ऑल माई डियर एंड लविंग एंड स्मार्ट स्टूडेंट्स विल स्टार्ट रीडिंग। फर्स्ट they will go in the bookshop and purchase the books and try to read the books। अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज लाइब्रेरीज आर ऑल्सो देयर। तो पब्लिक लाइब्रेरी भी होती है और स्कूल में भी लाइब्रेरी होती है। तो आप पब्लिक लाइब्रेरी में भी जाके बुक ले सकते हैं 15 डेज़ के लिए। आपका रीडिंग हो जाए तो आप वापस उसे दे सकते हैं और न्यू यू कैन रिन्यू द बुक। सो लाइक दिस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फैसिलिटीज़, सब फैसिलिटीज़ आपको है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको टाइम निकालना है और ये हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक यू हैव टू इनकलकेट इन योर सेल्फ। तभी पोएटेस जेनी एलिजाबेथ क्लर्क जो उनका ड्रीम है वो फुलफिल होगा कि चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग द बुक्स। और जैसे ही वो रीडिंग द बुक स्टार्ट कर देंगे दे विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, कि what different animals are there, different kinds of things are there. So all this information they can get through the books. उनकी रीडिंग हैबिट भी इम्प्रूव होगी और they will get all the informative information about the books. So my dear and loving students, please try to inculcate and take maximum use of this free time and try to read the books. Thank you everyone.